ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा एंड वेलकम ऑल द डिवोटीज। हम 6 चैप्टर कर रहे हैं। 6 चैप्टर एक बार हमने खत्म कर लिया है, अभी हम रिवाइज कर रहे हैं। तो पहले 9 श्लोक हमने पिछले 1-2 दिन में किए रिविजन में। तो हम फर्स्ट से लेके आज 18 तक जितने भी है ना श्लोक, सब एक बार पढ़ लेंगे और इसको खासकर 10 to 18 जो हैं उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। तो 1 to 9 तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो हम सिर्फ रीडिंग करेंगे उसकी। तो कौन वॉलंटियर करेगा पढ़ने के लिए? सब लोग अगर एक एक श्लोक पढ़ें तो फिर हम वी कैन कीप टेकिंग टर्न्स। आप अपने आप वॉलंटियर करके अनम्यूट करके पढ़ सकते हैं। तो कौन स्टार्ट करेगा फर्स्ट? I can read. हाँ, गो है। Hare Krishna. Chapter 6, Dhyan Yoga, Text 1. The Supreme Personality of Godhead said, one who is unattached to the fruits of his work and who works as he is obligated is in the renounced order of life. And he is the true mystic, not he who lights no fire and performs no duty. Hare Krishna. हरे कृष्ण। सेकेंड वाला कौन करेगा रीड? I can read Prabhuji. हाँ, आप पढ़िए माता जी, और थर्ड वाला कविता पढ़ लेंगी। चलो ठीक। What is called renunciation? You should know to be the same as yoga, or linking oneself with the Supreme. O son of Pandu, for one can never become a yogi unless he renounces the desire for sense gratification. हरे कृष्ण। कविता? Hare Krishna. Yes. For one who is a neophyte in the Eightfold Yoga system, work is said to be the means, and for one who is already elevated in yoga, cessation of all material activities is said to be the means. Hare Krishna. हरे कृष्ण। फोर्थ कौन पढ़ेगा? हाँ, अलका माता जी आप पढ़िए। Shall I हाँ, आप पढ़ो, प्रकाश पढ़ो। A person is said to be elevated in yoga when, having renounced all material desires, he neither acts for sense gratification nor engage in fruitive activities. Hare Krishna. हरे कृष्ण, थैंक यू। फिफ्थ? Shall I, Prabhuji? यस प्लीज। One must deliver himself with the help of his mind and not degrade himself. The mind is the friend of the conditioned soul and his enemy as well. Hare Krishna. Okay, thank you. Thank you. Who will do the next one? Hare Krishna Prabhuji. Yes, Lakshmana. Text 6. For him who has conquered the mind is the best of friends. But for one who has failed to do so, his mind will remain the greatest enemy. Hari Bol. Hare Krishna. Seventh. Hare Krishna Prabhuji, I can read. Thank you, Ankita. Text 7. For one who has conquered the mind, the super soul is already reached, for he has attained tranquility. To such a man, happiness and distress, heat and cold, honor and dishonor are all the same. Hari Bol. Thank you, Mataji. Ninth. Anybody who has not read would like to read ninth? Okay, I'll read. Person who is considered still further advanced when he regards honest well-wishers, affectionate benefactors, the neutral mediators, the envious friends and enemies, the pious and sinners, all with an equal mind.
I can read 10. You know, I think 7th किसने पढ़ा था? 8th रह गया। 8th रह गया। जी प्रभु जी 7th मैंने पढ़ा था। 7th आपने पढ़ा था, ओके 8th रह गया, सॉरी। तो 8th में पढ़ता हूँ। A person is said to be established in self-realization is called a yogi or mystic when he is fully satisfied by virtue of acquired knowledge and realization. Such a person is situated in transcendence and is self-controlled. He sees everything, whether it be pebbles, stones or gold, as the same. 9th कौन पढ़ेगा? Hare Krishna, I can read. Okay. Yes, go ahead, Rashika. Yes, text 9. A person is considered still further advanced when he regards honest well-wishers, affectionate benefactors, the neutral mediators, the envious, friends and enemies, the pious and the sinners, all with an equal mind. Okay, तो ये तो हमने पहले 9 कल डिस्कस कर लिए हैं। अब हम आज करेंगे 10th से। तो 10th रीड करेंगे माता जी। Hare Krishna. The transcendentalist should always engage his body, mind, and self in relationship with the Supreme. He should live alone in secluded places and should always carefully control his mind. He should be free from the desire and feeling of possessiveness. Hare Krishna. हरे कृष्ण। तो अभी हमने पहले 9 श्लोक जो थे उसके अंदर कल डिस्कस किया था कि कैसे माइंड कंट्रोल जो है वो इम्पोर्टेंट है, क्या क्या एस्पेक्ट्स होते हैं योगा के, कैसे सिर्फ सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं बल्कि उसकी डिजायर, इच्छा भी रखना जो है उससे भी प्रॉब्लम हो जाती है, और कैसे अलग अलग योगा लैडर है, पूरी 8 फोल्ड योगा सिस्टम, उसमें हम चलते हैं। आज हम देखेंगे कि ये अष्टांग योगा का जो स्पेसिफिक प्रोसेस है इसके लिए क्या क्या चीजें बताई गई हैं, तो कैसे करनी है इसको, क्या है भगवान ने क्या बताया वो हम देखेंगे, और कितना प्रैक्टिकल है ये, कितना अर्जुन, या आने वाले दिनों में हम उसको भी रिवाइज करेंगे। तो 11th 12th कौन पढ़ेगा? एनी वॉलंटियर्स? Hare Krishna, Prabhuji, पढ़ दो। हाँ आप पढ़िए। To practice yoga, one should go to a secluded place and should lay kusha grass on the ground and then cover it with deer skin and soft cloth. The seat should neither be too high nor too low and should be situated in sacred place. The yogi should then sit on it very firmly and practice yoga to purify the heart by controlling his mind, senses and activities and fixing the mind on one point. Hari Bol. हरे कृष्ण, थैंक यू। तो यहाँ पे बताया गया है कि कैसे एक सेक्लूडेड प्लेस में जाना है, वहां पे कुशा ग्रास बिछानी है, डियर स्क्रीन होनी चाहिए उसके ऊपर, फिर क्लॉथ होना चाहिए, सीट जो है वो बहुत ज्यादा हाई भी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा लो भी नहीं होनी चाहिए, और ऐसे तपस्या करनी है, वहां पे जाके माइंड को फिक्स करना है, माइंड को फिक्स करना वो सबसे बड़ी तपस्या है, माइंड को कंट्रोल करना। और साथ ही साथ ये बताया गया है कि कैसे ये इस स्थिति में नहीं हो सकती कि आप घर में रह रहे हो और वो सब कर रहे हो, आपको सेक्लूडेड प्लेस में जाके करना पड़ेगा। नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? 13. Yes, Prabhuji. Yes, Prabhuji. please go ahead. Hare Krishna. One should hold one's body, neck, and head erect in a straight line and stare steadily at the tip of the nose. Thus, with an unagitated, subdued mind, devoid of fear, completely free from sex life, one should meditate upon me within the heart and make me the ultimate goal of life. Hare Krishna. हरे कृष्ण, थैंक यू। तो ऐसे करना है, एक जगह जाना है सेक्लूडेड, वहां पे बिल्कुल बॉडी, नेक, हेड ये सब इरेक्ट होनी चाहिए स्ट्रेट लाइन में, और टिप ऑफ नोज पे देखना है, और बैठना है, मेडिटेट करना है वहां पे, ऐसे खड़े हुए चलते हुए घूमना फिरना नहीं।
और सारी सेंस ग्रेटिफिकेशन, सेक्स डिजायर और ये सब हट जाना चाहिए। ऐसे माइंड से करेंगे हम, मेडिटेट। ओके, 15th कौन करेगा? कोई वॉलंटियर करेगा 15th के लिए? जिन्होंने पढ़ लिया है वो भी दोबारा से भी पढ़ सकते हैं। Okay, Prabhuji. हाँ, पढ़िए। Thus, practicing constant control of mind, of body, mind, and activities, the mystic transcendentalist, his mind regulated, attains to the kingdom of God or the abode of Krishna by cessation of material existence. Hare Krishna. हरे कृष्ण। 16। I can read. हाँ जी। There is no possibility of one's becoming a yogi, O Arjuna, if one eats too much or eats too little, sleeps too much or does not sleep enough. Hare Krishna. हरे कृष्ण। 17th। Should I read? हाँ जी, प्लीज। He who is regulated in his habits of eating, sleeping, recreation, and work can mitigate all material pains by practicing the yoga system. Hare Krishna. हरे कृष्ण। 18। को वॉलंटियर करेगा 18 पढ़ने के लिए? I can read Prabhuji. हाँ माता जी, आप पढ़े। When the yogi, by practice of yoga, disciplines his mental activities and becomes situated in transcendence, devoid of all material desires, he is said to be well established in yoga. Hare Krishna. ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है? प्रभु जी अब अब आ आ रही रही है। है। ओह सॉरी। तो मैं तो कुछ भी नहीं सुना मेरा, या कुछ सुना था? नहीं, आपकी टेक्स्ट 18 के बाद जो पढ़ा था उसके बाद कोई आवाज नहीं आ रही कोई थी। आवाज नहीं है? ओके, तो मैं यही डिस्कस कर रहा था। मैंने कहा कि कल हमने चर्चा की थी योगा लैडर के बारे में। हमने बताया था कि कैसे योगा लैडर है, एक अलग अलग रंग है सीढ़ी के, उस पर चढ़ना होता है। और उसमें हम आए थे अष्टांग योगा पे, और हमने बताया था कैसे अष्टांग योगा में 8 लिम्स है योगा के। तो कौन कौन से थे, क्या था शुरू में, कौन से 8 लिम्स थे? कौन बताएगा? मैं बताऊं? हाँ बताइए माता जी, यम, ओके, नियम। हो गया यम। यम का क्या मतलब था? प्रभु जी, डोंट्स। हाँ, कि क्या क्या चीजें नहीं करनी। ठीक है, तो क्या क्या चीजें नहीं करनी है वो हो गए यम, डू नॉट्स। फिर सेकंड स्टेप क्या है, कौन बताएगा? नियम। सॉरी प्रभु। नियम। तो यम हो गया, फिर नियम हो गया। नियम का क्या मतलब है? डूस। क्या क्या करना है? क्या क्या करना है? ओके, सो यम नियम। फिर तीसरा क्या है? आसन। आसन, यस। तो आसन करने हैं, बॉडीली पोस्चर्स। और फिर चौथा प्राणायाम। प्राणायाम हो गया। फिर पांचवा प्रत्याहार। प्रत्याहार। वेरी नाइस। फिर नेक्स्ट छठा
धारणा। धारण धरन ध- धरन हम्म। अतुल धरन ओके, फिर ज्ञान हम्म। समाधि। ओके, एक सेकेंड, सॉरी, आई थिंक कोई प्रॉब्लम हो गई मेरी स्क्रीन शेयरिंग में। गिव मी 1 सेकेंड। ओके, तो यस, तो धारणा, ध्यान, समाधि। तो 6 स्टेज धारणा है, फिर उसके बाद ध्यान है, फिर समाधि। ठीक है ना? तो बाकी तो आप लोगों ने सबने बताई दी थी। तो यहाँ पे पहली जो स्टेज है यमा के बारे में हमने डिस्कस किया कि उसके अंदर अहिंसा प्रैक्टिस करनी। ये सारी डोंट्स, मतलब किलिंग नहीं करनी, लाइंग नहीं करनी, स्टीलिंग नहीं करनी, अननेसेसरी सेक्सुअल इंटेलिजेंस नहीं करना, और पोजेसिवनेस की भावना नहीं होनी चाहिए। फिर नियम क्या क्या करना चाहिए? शौचम, क्लीनलीनेस और प्योरिटी होनी चाहिए। संतोष, कंटेंटमेंट होना चाहिए, सेटिस्फाइड होना चाहिए। तपस्या करनी चाहिए, ऑस्टेरिटी। स्वाध्याय, स्क्रिप्चुरल स्टडी वो करनी चाहिए। और ईश्वर प्राणिधान, सरेंडर टू कृष्णा करना चाहिए। तो ये सब करना होगा। फिर बॉडीली पोस्चर और प्राणायाम, इनका मकसद क्या होता है कि माइंड जब बहुत एजिटेटेड होता है, इधर उधर जा रहा होता है, तो उसको लेके आना। और उसके बाद जो सेंसेस है उनको विड्रॉ करना सेंस ऑब्जेक्ट से। फिर उसको मेडिटेट, भगवान पे लगाना। फिर उसमें और ज्यादा कंसोलिडेट करना, फिक्स करना, फोकस करना, एब्जॉर्ब करना, और फिर पूरी तरह से एब्जॉर्ब होने में समाधि। तो ये 8 स्टेप्स हमने डिस्कस किए थे कल। तो 6.10 में क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि योगी युंजित सततम आत्मानाम रहसी स्थिता एकाकी यत चित्तात्मा निराशेर अपरिग्रह। Transcendentalist should always engage his body, mind, and self in relation with the Supreme. He should live alone in a secluded place and should always carefully control his mind. Should be free from desire and feeling of possessiveness. तो ये सारी चीजें एक ट्रांसेंडेंटलिस्ट में होनी चाहिए। तो जब ये अलग होते हैं और एब्जॉर्ब, ध्यान, मेडिटेट कर रहे हैं, तो ये अलग अलग चीजों पे मेडिटेट कर सकते हैं। जैसे एक होती है मेडिटेशन ऑन द ब्रह्मन। ब्रह्मन मीन भगवान, जो शक्ति है, पर्सनालिटी है, पूरी सृष्टि को चला रहे हैं। उनका एक एक्सपेक्ट है उनकी पावर, उनकी शक्ति, जो कि ब्रह्मन रियलाइजेशन होती है। और ब्रह्मन रियलाइजेशन में एक्चुअल पर्सनालिटी के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं होती, रियलाइजेशन नहीं होती। तो सिर्फ ये है कि भगवान एक सृष्टि को चला रहे हैं, ऐसे क्या कहते हैं, शक्ति है। और परमात्मा रियलाइजेशन में होता है कि हाँ, सृष्टि को सब चला रहे हैं और सब कर रहे हैं, मगर ब्रह्मन जो है वो लोकलाइज्ड परमात्मा भी है, मेरे हृदय में है, लोकलाइज्ड फॉर्म में। और भगवान में एक्चुअली और ज्यादा डीप हो जाता है। उसमें पता लगता है कि हाँ, भगवान सृष्टि को भी चला रहे हैं, हृदय में भी है, लेकिन साथ ही साथ भगवान एक ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनके साथ हम प्रेम का आदान प्रदान कर सकते हैं। वो व्यक्ति हमारे जैसे नहीं है जो मटेरियल हैं, वो दिव्य हैं, वो स्पिरिचुअल हैं, वो ट्रांसेंडेंटल हैं, वो इस सृष्टि से परे भी हैं, लेकिन वो इस सृष्टि को कंट्रोल भी कर रहे हैं, और सृष्टि में हमारी प्रेम को एक्सेप्ट करने के लिए वो प्रकट भी हो सकते हैं हमारे सामने। और अर्च विग्रह, जो जिनको भगवान की मूर्ति होती है, उसको मूर्तिमान स्वरूप भगवान, वो भगवान से अभिन्न होते हैं, और उनके थ्रू भी हम भगवान से प्रेम का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो ये हो गए ब्रह्मन, परमात्मा, भगवान के बीच में डिफरेंस। तो इनमें हम डिस्कशन पहले भी कर चुके हैं, तो आगे बढ़ेंगे। तो सततम, योगी जो है वो डेली कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने स्पिरिचुअल पाथ पे। और कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं? सॉलिटरी प्लेस में और
एकाकी मतलब अलोन है, कोई ऐसे नहीं कि वहां पे पूरी मजमा लगा के बैठे हैं, नहीं। और यत चित्तात्मा, पूरी तरह से माइंड को और थॉट्स को कंट्रोल करना जान गए। तो ये काफी एडवांस्ड है ये सब चीजें, क्योंकि ज्यादातर हमारी समस्याएं माइंड से होती हैं। हमने कल देखा था ना कैसे माइंड एंड कंट्रोल हो, इतना बड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। और निराशेर, इच्छाएं और डिजायर जो है उनसे परे हो चुके हैं। वो मटेरियल इच्छाएं अब उनको कैप्चर नहीं कर सकते। हमारे को जैसे इच्छा आती है उसी वक्त कुछ हमारे को घूमने जाना है, खाना पीना खेलना है, ऐसी इच्छाएं जो है उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकती। उनकी इच्छा जो है वो भगवान की सेवा में लग रही है। अपरिग्रह पोजेसिवनेस, तो ये सब चीजों से वो उठ चुके हैं। तो ये मंडेन लोग और उनके फोटो में यहाँ दिखाया देख रहे हैं ना आपको, ये एक स्टोरी है, आप लोगों को सुना होगा आपने कि एक मंकी और एक क्रोकोडाइल की फ्रेंडशिप हो जाती है। फ्रेंडशिप होती है तो क्रोकोडाइल की वाइफ को पता लगता है, क्रोकोडाइल की वाइफ को पता लगता है कि क्रोकोडाइल की वाइफ कहती है यार वो जो मंकी है ना, मुझे वो मंकी लाके दो, मैं उसका हार्ट खाऊंगी, जो पसंद है। खाऊंगी और फिर और क्रोकोडाइल जो था वो उसका दोस्त था मंकी, लेकिन अब वो मना कैसे करे, वाइफ ने कह दिया तो फिर वो तो फिर करना ही पड़ता है कि नहीं, मना तो किया नहीं जा सकता। तो रोज वो जाते थे घूमने फिरने टहलने। तो इस दिन क्रोकोडाइल ने कहा कि आओ मैं आपको थोड़े दूर लेके जाता हूँ आज। तो वो लेके जा रहा था उसको, लेके जाते जाते उसने क्रोकोडाइल ने बोला कि देखो वैसे तो मुझे दुख हो रहा है, लेकिन मुझे ये करना पड़ रहा है कि मेरी वाइफ जो है ना, उसने मुझे बोला है कि आपका जो हार्ट है वो उसको खाना है, इसलिए मैं आज आपकी को अपनी वाइफ के पास लेके जा रहा हूँ। तो बंदर था वो, लेकिन था चालाक। तो उसने क्या बोला क्रोकोडाइल को, उसने कहा देखो ऐसा है कि मैं पहले मुझे बताना था ये तुमके हार्ट चाहिए, मैं हार्ट तो अपना वहां पेड़ पे भूल आया, अब मुझे जाना पड़ेगा पेड़ में वापस लेने के लिए हार्ट। तो क्रोकोडाइल ने कहा अच्छा भूल आया आप अपना हार्ट? कहते हैं हाँ, पहले बताते कि आपकी वाइफ को चाहिए था, मैं लेके आता। जाओ लेके चलो मुझे वहां पेड़, अभी मैं पेड़ से उतार के लाता हूँ अपना हार्ट, फिर वो लेके जाएंगे, फिर वो खाएगी। उसने कहा अच्छा हूँ, मैंने रास्ते में ही बता दिया, मैं वहां जाके पता लगता है इसका हार्ट ही नहीं है, फिर वो भी बेइज्जती हो जाती मेरी वाइफ के सामने। तो क्रोकोडाइल ने कहा चलो जी वापस, वहां पे लेके गया उसको पेड़ में। तो जैसे ही वो कॉर्नर में पहुंचे, पहले तो वो स्विम कर रहे थे ना, उसके ऊपर था, वो पानी से जा नहीं सकता था। और जैसे ही पेड़ पे पहुंचे वो फटाफट लपक के चढ़ गया। उसने कहा चल भैया मैं नहीं तेरे पास आ रहा। तो इस स्थिति में बंदर तो बच गया, लेकिन क्योंकि अब बंदर वापस चला गया, क्रोकोडाइल हाथ मलता रह गया। लेकिन जब हम एसोसिएट करते हैं ऐसे लोगों के साथ जिनकी प्रवृत्ति होती है भगवान की तरफ ना बढ़ने की, जो सीरियस नहीं होते अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में, तो हमें समझ लेना चाहिए हम बहुत डेंजरस स्थिति में, डेंजरस सिचुएशन में क्यों है, क्योंकि हमारी इच्छाएं, हमारी डिजायर जो है वो उनके डिजायर से इन्फ्लुएंस होके अलग दिशा में चली जाएंगी। तो जिस तरीके से यहाँ बंदर ये बच गया है, उस तरीके से हो सकता है हमको मौका ना मिले। लेकिन अभी अगर हम ये बिल्कुल कॉन्शियस रहें इस बात के और सीरियस हो जाएं कि नहीं ऐसे खतरनाक लोगों का संग करना ही नहीं है जो क्रोकोडाइल की तरह हो और कभी हमारा हार्ट खा ले, और हमें लिमिटेड इंटरैक्शंस वर्क प्लेस पे, सोशल लेवल पे रख सकते हैं हम, लेकिन बहुत ज्यादा हमें एसोसिएट करने की कोशिश करनी चाहिए ऐसे व्यक्तियों से जो सीरियस हो भगवत गीता पढ़ने में, स्पिरिचुअल लाइफ में, जिनको खुद भी नॉलेज हो और जो इसके तरफ सीरियस होना चाहें। अगर उनको नॉलेज नहीं है तो हम उनसे शेयर कर सकते हैं अपनी नॉलेज। अदरवाइज हम क्या करेंगे, हम ज्यादा इंगेज कर नहीं सकते लोगों के साथ। हम टीवी, ये देखो ये टीवी देख रहे हैं लोग, ताश खेल रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो इसी में लोग संसार के रह जाते हैं। और योगी तो कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि उनको सेक्लूडेड प्लेस में चाहिए। तो ये अष्टांग योगा के जो प्रैक्टिशनर हैं उनके लिए तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अभी मैं दोनों के बीच में डिफरेंस भी बताऊंगा, अष्टांग योगा और भक्ति योगा में क्या क्या चीजें
कॉमन है और क्या क्या फर्क है। तो फिर नेक्स्ट क्या है, वैराग्य। वैराग्य मीन्स डिटैचमेंट। दो तरह का डिटैचमेंट है, एक है युक्त वैराग्य और एक है फल्गु वैराग्य। युक्त वैराग्य तो बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। युक्त वैराग्य जो है वो प्रैक्टिस करना चाहिए। क्या होता है युक्त वैराग्य, कि आपको पास जो भी चीज है, अगर आप सोचते हो कि ये भगवान की सेवा में इस्तेमाल करनी है, तो उसको आप युक्त वैराग्य कहोगे। जैसे आपको अगर घर मिला, आप घर के अंदर भगवान का अर्च विग्रह की पूजा करो। आप अपनी फैमिली जो रह रही है उस घर में, उनको भगवत गीता भागवतम ऐसे पढ़ने के लिए एंकरेजमेंट करो, हेल्प करो। और आप भी स्टडी करो स्क्रिप्चर्स की, आप चैंटिंग करो, कीर्तन करो, लोगों को इनवाइट करो जो टेम्पल से आके अच्छा कीर्तन कर सकें। बाकी अपने फ्रेंड्स वगैरह को गैदर करो, वो सुन सके भगवान के बारे में। तो ये हो जाता है युक्त वैराग्य, कि आपके पास है घर लेकिन वो आपका नहीं। तो ये युक्त वैराग्य की प्रैक्टिस भक्ति योगा के प्रैक्टिशनर्स कर सकते हैं। अष्टांग योगा वालों को तो जंगल में जाना पड़ता। और युक्त वैराग्य, अगर आपके पास कार है, आप कार को यूज करो अपने क्या कहते हैं, मंदिर जाने के लिए, अपने जॉब पे जाने के लिए, वर्क प्लेस पे जाने के लिए, और उनसे जो वर्क प्लेस से आपका आमदनी हो रही है, आप उसके में अपने घर परिवार को अच्छे से ध्यान रखो और उसको भगवान की सेवा में लगाओ सारा जितना ही पैसा है। तो ये हो गया युक्त वैराग्य। और फल्गु वैराग्य क्या है, मरकट वैराग्य, कि आपके पास है फैसिलिटी भगवान की सेवा में लगाने के लिए, लेकिन आप उसको भगवान की सेवा में नहीं लगा रहे और रिजेक्ट कर देते हो। जैसे आपके पास ये बोलने की एक, आपको भगवान ने आपको रिसोर्स दिया हुआ है कि आप अपनी जीवा को यूज कर सकते हो, तो आप उसके लिए भगवान के बारे में बोलो, भगवान के बारे में लोगों को शेयर करो लोगों से। लेकिन अगर आप कहते हो कि नहीं मैं अब यूज ही नहीं करूंगा, मैं मौन व्रत रखूंगा, मौन व्रत, तो कई बार मौन व्रत रखना जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि लोगों को इतना उल्टा सीधा बोलने का मन करता है, तो उनको उनके गुरु कहते हैं अब तुम मौन व्रत रखो, कोई बात नहीं करने दो। तो वो भी होता है, लेकिन वो इनकम्प्लीट रिनंसिएशन है, इन प्रॉपर रिनंसिएशन है, और है भी मुश्किल। लोग ये नेचुरल नहीं है लोगों के लिए ना बोलना। लोग इतना बोलते हैं कि ना बोलना तो उनके लिए एक बहुत बड़ी तपस्या हो जाती है, ऑस्टेरिटी हो जाती है। लेकिन अगर वही वो बोलने को भगवान की सेवा में यूज करें तो वो ज्यादा बेटर है। तो ये फर्क हो गया फल्गु वैराग्य और युक्त वैराग्य। फल्गु वैराग्य ऐसा भी होता है जिसमें लोग दिखाने के लिए करते हैं कि देखो हम कितने बड़े तपस्वी हैं, लेकिन एक्चुअली उनका मन जा रहा है सारी मटेरियल चीजों में, कि ये खा लूं मैं, ये पैसा आ जाए मेरे पास, ये ऑपोजिट सेक्स के साथ मैं एंजॉय कर लूं। तो ये सब भी फल्गु वैराग्य में आता है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे बताया जा रहा है, टू प्रैक्टिस योगा वन शुड गो टू सेक्लूडेड प्लेस। अभी हमने डिस्कस किया था ये, लेक, उषा ग्राउंड, ना ज्यादा ऊपर होना नीचे, और डियर स्किन होना चाहिए, सॉफ्ट क्लॉथ होना चाहिए। तो ये सब चीजें होनी चाहिए, और फर्मली फिक्स होकर बैठना चाहिए, तभी कर सकते हैं। तो एक बारी क्या हुआ, ऐसे ही दो योगी थे। तो एक योगी एक जगह कर रहा था, वो चला गया अपना। दूसरा कोई आया, उसने कहा ये अच्छी सीट बनाई है, यहाँ पे आके मैं बैठ जाता हूँ, और आराम से वो उसकी सीट पे आके बैठ गया। तो ऐसे किसी की सीट भी नहीं लेनी चाहिए। तो वो दूसरे की सीट पे आके बैठ गया। तो ये आया पहले वाला, उसने कहा ये तो मेरी सीट पे क्यों बैठ गए हो, चलो हटो। उन्होंने कहा भाई तुम तो वैरागी हो, तुम तो सब छोड़ बोड़ के आ गए हो, अब यहाँ पे सीट पड़ी थी मैंने बैठ गया, आप कहीं और चले जाओ, तुम क्या है। तो पहले वाले योगी ने कहा अच्छा तू तो कौवे के समान है, कौवा जैसे कहीं पे भी आगे किसी से कुछ छीन के ले जाता है, तू भी आगे छीन के ले जा रहा है, तेरे को शर्म नहीं है। तो दूसरा वाले योगी कहता है अरे तुम तो सर्प के समान हो, सांप के समान हो, जो अपने फन दिखा दिखा के दूसरे को वो कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि योगी या कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो अगर दिखाने के लिए तो कर रहे हैं, लेकिन अंदर से उनके हृदय के अंदर त्याग नहीं आया, अंदर से उनके हृदय के अंदर ह्यूमिलिटी, नम्रता नहीं आई, सेवा भावना नहीं आई, तो वो जंगल जाके भी प्योरिटी नहीं मिल सकती।
तो इसीलिए ये इंटरनल कॉन्शियसनेस माइंड, उसको क्लियर करने के लिए कृष्णा यहाँ पे हमारे को बहुत ही प्रैक्टिकल मेथड जो है वो देना चाहते हैं। और ये सब चीजें अभी अर्जुन भी बताएगा कि ये बिल्कुल बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं है मेरे लिए, तो वो हम आगे भी डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे पॉइंट क्या है, यहाँ पे बताया गया है कि क्या है, आपको अपना आसन प्रिपेयर करना है खुद, और कैसे कैसे प्रिपेयर करना है वो बताया है। बहुत ज्यादा ऊपर भी नहीं होना चाहिए, नीचे भी नहीं होना चाहिए, और ऐसे वैसे होना चाहिए। और फिर क्या करना है आपने, मेडिटेट, ध्यान करना है आपने। कैसे करना है, आपको हृदय में भगवान को, और कैसे अंदर की एयर जो है उनको रेगुलेट करके करना है। तो बड़े बड़े शहरों में हो नहीं सकता ऐसे ये सब, ये बड़ा सीरियस प्रोसेस है, और इसके लिए जाना पड़ेगा आपको बाहर। कलयुग के लिए एक्चुअली रिकमेंडेड भी नहीं है। उससे अच्छा क्या है, ये मेडिटेशन बेटर है। इस पे ध्यान, किस पे, भगवान के अर्च विग्रहों पे मेडिटेट करें हम, भगवान के लोटस फीट, चरणों पे, भगवान की सेवा में लगें, और अपने टैलेंट्स को लगाएं कि कैसे भगवान को अच्छे से ड्रेस कर सकें, भगवान के लिए अच्छे से कुक कर सकें। भगवान को तो आप एक पत्ता, एक फ्लावर भी ऑफर करोगे तो भगवान खुश हो जाते, इतने दयालु हैं भगवान। और अभी भी देखते हो आप, कई बारी लोग अलग अलग जाके तरह की तपस्या करते हैं हरिद्वार में, और ऐसे ऐसे ये देख रहे हो आप ऊपर पेज में। तो ये तो फिर भी आप मेडिटेशन मान सकते हो, लेकिन ये जो नीचे वाली मेडिटेशन है योगा स्टूडियो में और ऐसे सब ग्रुप में कर रहे हैं, दिस इज नॉट अष्टांग योगा। एटलीस्ट कृष्णा ने ये प्रोसेस नहीं दिया। ये जो है थोड़ा हेल्थ वेल्थ बेनिफिट मिल सकता है इसके लिए कि हम योगा स्टूडियो में थोड़ा योगा कर रहे हैं, उससे थोड़ा माइंड कंट्रोल के लिए, और वो हो सकता है। फिर नेक्स्ट 13-14 सम्मम काय शिरो ग्रीवम धारयन् अचलम स्थिरा संप्रेक्ष्यानासिकाग्रम स्वम दिशश्चानवलोकयान् प्रशांतात्मा विगत भीड़ ब्रह्मचारी व्रते स्थिता मन संयम्य मच्चित्तो युक्तासीत मत्परः। तो मेडिटेट करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, होल्ड द बॉडी, नेक, हेड इरेक्ट स्ट्रेट लाइन पे, और टिप ऑफ द नोज पे देखो, या टिप ऑफ द फोरहेड पे देखो, ऐसे टिप ऑफ द नोज बोले। अनएजिटेड सबड्यूड माइंड से, बिल्कुल भय को त्यागते हुए और पूरी तरह से फ्री होके, फ्री फ्रॉम सेक्स लाइफ, मेडिटेट करो। और मेडिटेट करो ऑन मी विद इन द हार्ट, हृदय में मैं हूं, ऐसे आप अंदर से मेडिटेट करो। और मेक मी द अल्टीमेट गोल, ऐसे बताया। तो ये सब बहुत जरूरी है। कोई रोल है नहीं घर में रह के सब फैमिली के साथ जो है अष्टांग योगा ऐसे नहीं हो सकता, त्याग के जाना पड़ेगा। और रोल ऑफ सेलिबेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सब चीजें यहाँ पे कृष्णा एम्फसाइज कर रहे हैं। तो ऐसे इंटरमिंगल होके नहीं कर सकते योगा स्टूडियो में, जहाँ पे उन्होंने पूरे कपड़े भी नहीं पहने। तो ऐसे ये सारी चीजें जो हैं ये बहुत ही प्रैक्टिकल चीजें हैं। भक्ति योगा और अष्टांग योगा बीच में डिफरेंस। यहाँ पे स्टोरी है बिल्लो मंगल ठाकुर की। ये जो बिल्लो मंगल ठाकुर है, नीचे जो फोटो दी हुई है, ये व्यक्ति, ये एक्चुअली बहुत गलत हरकतों में पड़ गए थे। इनको अपने घर परिवार की जगह एक प्रोस्टिट्यूट से इनकी आसक्ति हो गई थी, वेश्या से। तो ये रोज उनके घर जाने लगे, और एक दिन इनके पिताजी की मृत्यु हो गई। और मृत्यु में भी ये पंडित को कह रहे थे कि जल्दी जल्दी मंत्र करो, इनको जल्दी हम अग्नि दें और फिर मैं जाऊं, मेरे को काम है। और अग्नि देने के बाद ये कहाँ जा रहे थे, उसी प्रोस्टिट्यूट के घर। और उस बीच में रास्ते में तूफान आने लगा, बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, और इतनी बारिश तूफान हुआ कि वहां नदी जो थी उसको क्रॉस करने के लिए कोई व्यवस्था भी नहीं थी।
लेकिन उन्होंने देखा कुछ तैर रहा है, तैरते हुए जो चीज थी उसको पकड़ के इन्होंने कहा कि मैं भी इसके थ्रू नदी को क्रॉस कर सकता हूँ। और जब उन्होंने नदी को एक्चुअली क्रॉस किया, बाद में जाके रियलाइज किया अरे ये तो किसी का मृत शरीर था, मरे हुआ शरीर था, किसी मुर्दा को पकड़ के इन्होंने कर लिया, वो लकड़ी नहीं थी। फिर आगे गए, आगे चल के जब उन घर में पहुंचे वहां, तो उनके घर तक जाने के लिए उनको सब बंद कर दिया था उस लेडी ने। उसने कहा अब तो इतना रात हो गए हैं, अभी आज थोड़ी आए। तो उन्होंने कहा कि नहीं मेरे को तो जाना ही है। तो देख रहे थे कैसे पकड़ के मैं किसी तरह से दीवार वगैरह टाप के वहां ऊपर चले जाऊं उनके घर, और वहां पे उनको कुछ लटकता हुआ देखा, उन्होंने पकड़ा और उसको पकड़ के ऊपर चढ़े। चढ़ के बाद में पता लगा अरे वो तो जो था वो रस्सी नहीं थी, वो सांप था, ऐसा लगा उनको रस्सी थी। और फिर उन्होंने हटाया, फिर आके उनको बताया लेडी को कि भाई जल्दी खोलो दरवाजा। तो इन्होंने दरवाजा खोला, फिर ये अंदर गए, फिर बताया कि कैसे मैं इतनी सब मुश्किलों से गुजर के आया हूँ। जब उसने सुना तो उसने कहा मुझे तो लगा नहीं था कि तुम आ जाओगे, लेकिन तुम्हारे अंदर कितनी आसक्ति, अटैचमेंट है यहाँ पे आने के लिए, सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए। अगर इतनी आसक्ति तुम्हारी भगवान के लिए होती तो आज तुम भगवान को प्राप्त कर चुके होते। जब उसने ये सुना तो ये बात ही उसके एक तरह से दिमाग में बजी। उसने कहा कि हाँ ये बात तो सही कही। तभी वो उसी वक्त निकल पड़े वृंदावन के लिए। उन्होंने कहा ये बात जो है ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और आगे चलते गए बिल्लो मंगल ठाकुर, और उन्होंने कहा मैं वृंदावन जाऊंगा। फिर आगे फिर से उनकी नजरों ने किसी और लेडी को देखा, और उनकी पुरानी जो हैबिट्स हैं वो फ्रेश होने लग गए। उनको क्या कहते हैं, ऐसे लगा कि मैं भी इंजॉय करूं। तभी उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा ये आंखें जो है ना ये मेरे को बार बार डिस्ट्रैक्ट कर रही है। उन्होंने उस लेडी से कहा आप मेरे को अपना हेयर पिन दे दीजिए। उन्होंने हेयर पिन दिया। वो हेयर पिन उन्होंने क्या किया, अपनी आंखों में मार लिया, ऐसे अपनी आंखों में मार लिया, और आंख जो है उनकी वो बिल्कुल ब्लाइंड हो गए। और भगवान की इतनी तीव्रता थी उनके अंदर भगवान को प्राप्त करने की कि वो गए फिर वृंदावन, और वहां पे उन्होंने भगवान की भक्ति की, और उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग लिखे भगवान के बारे में, और उनको बहुत महान संत कहा जाता है। और खुद चैतन्य महाप्रभु जो 500 साल पहले आए तो वो खुद उनके लिखे हुए जो उनकी क्या कहते हैं जो कविताएं थे वो पढ़ते थे, सॉन्ग्स उनको पढ़ते थे। तो इससे पता लगता है कि कितनी भी हमारे अंदर क्या कहते हैं डिफिकल्टीज हो हमारे लाइफ में, प्रॉब्लम्स हो कि हम भगवान की तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं, लस्ट, ग्रीड, एंगर, एनवी, ये सब हमारे को बहुत जोर से पकड़े हुए हैं। लेकिन फिर भी अगर हम प्रयास करते हैं और कोशिश करते हैं तो ये धीरे धीरे सारी चीजें शुद्ध हो जाती है भगवान के नाम से, भगवान की तरफ बढ़ने से। तो ये भी पॉसिबिलिटी है भक्ति योगा में, ठीक है ना। तो हम आगे चलेंगे, मैं सीधा चलना चाहता हूँ। ओके, नेक्स्ट 6.15 युंजन एवं सदात्मानं योगी नियत मानसा शांतिम निर्वाण परमाम मत संस्थामादिगच्छति। So his mind is regulated, attains the kingdom of God by cessation of material existence. तो constantly practice करना है, constantly practice करने से control of body, mind and activities, इस चीज को हम constantly अगर practice करेंगे, control of mind, senses, bodily activities, तो इससे क्या हो जाता है, इससे भगवान की प्राप्ति हो सकती है। और regulated way में चलना है, कहीं पे भी बहुत ज्यादा एक्सेस नहीं करना। Next, there is no possibility of one becoming a yogi, O Arjun, if one eats too much or eats too little, sleeps too much or does not sleep enough. तो इक्वल और रेगुलेटेड अमाउंट में हमारे को हर चीज करनी है, ठीक है ना। If one has
regulated eating, regulated walking, regulated use of organs in both material and spiritual activities, regulated sleep, his yoga, if he does not have that, his yoga is destroyed. But if he has everything regulated, then his yoga destroys all suffering. यहाँ पे आप देख रहे हो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से एक्सट्रीम में, एक व्यक्ति बहुत ज्यादा काम कर रहा है, परेशान है, एक खाता जा रहा है, एक सोता जा रहा है, एक वो वकेशन ही करते आ रहे हैं। तो ऐसे नहीं होगा, रेगुलेटेड वे में रहना है। अगर हम रेगुलेटेड वे में रहेंगे तो अचीव कर पाएंगे। और बेस्ट क्या है, रेगुलेटेड प्रसादम। अगर हमने प्रसादम एक अच्छा कंट्रोल है टंग के लिए, क्योंकि अगर प्रसाद नहीं होगा तो हम खाएंगे नहीं, और अगर प्रसाद होगा तो हम खा सकते हैं। तो ऐसे हमारी बॉडी को भी नरिशमेंट मिलती है और बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअली और मटेरियली प्यूरिफाइंग पाथ है। ठीक है ना। फिर ईटिंग, वर्क, रिक्रिएशन, स्लीपिंग, इन सब के लिए। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड्स हैं, नेक्स्ट 2-3, इसके बाद हम कंक्लूड करेंगे। यहाँ पे डिफरेंट है अष्टांग योगा और भक्ति। ये जो चैप्टर है एक्चुअली इसमें योगा के बारे में बताया गया, और इसका योगा का एक लिम्ब है अष्टांग योगा, जिसके अंदर फर्दर 8 क्या कहते हैं 8 लिम्ब्स हैं जिसके। तो एक जो रंग है ये लैडर अष्टांग योगा, जिसके ऊपर भक्ति योगा है। उन दोनों में डिफरेंसेस क्या है, अष्टांग योगा और भक्ति योगा? अगर अष्टांग योगा कोई अलग से निकाल दे और कहे कि यही एक पूरा प्रोसेस है अष्टांग योगा भगवान तक जाने का, तो वो प्रोसेस और जो भक्ति योगा का है उसमें फर्क क्या है? उसमें ये फर्क है, देखो प्रिंसिपल तो दोनों का सेम है कि बॉडी को एंगेज करना है भगवान की सेवा में, ठीक है ना, ये तो दोनों में है। फिर नेक्स्ट क्या है कि अष्टांग योगा में सेकंड पॉइंट, impersonalists and yogis are partially imperfectly and indirectly कृष्णा कॉन्शियस। इसका मतलब ये है कि इनको भी भगवान के स्वरूप के बारे में इतना आइडिया नहीं होता, तो ये थोड़े इनकम्प्लीट होते हैं। प्लेस ऑफ प्रैक्टिस दोनों की अलग है। जो अष्टांग योगी हैं वो घर में नहीं रह सकते, उनको जाके जंगलों में पहाड़ों में ऐसे रहना पड़ेगा। डिवोटीज जो हैं वो घर में रह सकते हैं और घर में भगवान की सेवा में को सेंटर बना के रह सकते हैं। माइंड कंट्रोल बहुत ज्यादा जरूरी है दोनों में। और माइंड कंट्रोल अष्टांग योगा में क्या होता है, उसमें परमात्मा के ऊपर उनको ध्यान लगाना होता है, और भक्ति योगी जो है वो भगवान के अंदर ध्यान लगाते हैं। अपने घर में भगवान की मूर्ति रख सकते हैं, भगवान के नाम ले सकते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कॉन्शियसनेस फ्री ऑफ डिजायर एंड पोजेसिवनेस, तो उनकी कॉन्शियसनेस जो है वो फ्री फ्रॉम डिजायर और पोजेसिवनेस होनी चाहिए। उसमें अष्टांग योग के बारे में क्या लिखा है, prerequisite to practice yoga rudha stage in perfect determination, one should not hanker after unnecessary material things that entangle him from the by feelings of material possessiveness। तो इनको योगा रूढ़ा जो है वो बिगनिंग स्टेज होती है, एडवांस स्टेज होती है योगा रूढ़ा की? एडवांस्ड। हाँ, तो योगा रूढ़ा अगर प्रैक्टिस करनी है हमें तो हैंकर नहीं करना मटेरियल थिंग्स की तरफ, बिल्कुल भी ऐसे माइंड कंट्रोल होना चाहिए। और कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति वो तो भगवान की सेवा के कोई सेंटर बना के चल रहा है, तो इसलिए वो युक्त वैराग्य प्रैक्टिस करता है, जो हमने डिस्कस किया युक्त वैराग्य पहले। फिर दोनों का क्या मैनर होना चाहिए बैठने का? भक्ति योगा में तो कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है कि आपको एक कुशाग्रास में बैठना है या कैसे बैठना है, आप कहीं पे भी बैठ सकते हो, जमीन पे, चेयर पे, कहीं पे भी। और भगवान में आपको ध्यान लगाना है, आप चैंटिंग कर सकते हो या अपनी फैमिली ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भगवान सेंटर्ड वे में कर सकते हो, कृष्णा सेंटर्ड। लेकिन इसमें अष्टांग योगी के लिए बिल्कुल एकदम स्ट्रेट बैठे रहना है, आंखें बंद होनी चाहिए, पूरी नहीं हो सकती, पूरी खुली भी नहीं हो सकती, टिप ऑफ नोज पे फोकस करना, तो ये सब चीजें। अष्टांग योग के लिए तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है फैमिली लाइफ का, सेलिबेसी है ही है। भक्ति योगा के लिए ये है कि हाँ आप घर में रह सकते हो, आप अपने बच्चे पैदा कर सकते हो, ये सब आपके लिए है भक्ति योगा के लिए। फियरलेसनेस जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में होते हैं वो पूरी तरह से फियरलेस होते हैं, जाके प्रहलाद महाराज। और ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन क्या है अष्टांग योगी में? विष्णु मूर्ति इन द हार्ट,
जो कि कृष्णा के एक्सपेंशन है, और भक्ति योगा में कृष्णा हिमसेल्फ। गोल ऑफ लाइफ दोनों का यही है कि कृष्णा को सेंटर बनाना है, ठीक है। फिर अल्टीमेट गोल ऑफ योगा प्रैक्टिस अष्टांग योगा के लिए सजेशन ऑफ ऑल मटेरियल एक्टिविटी एग्जिस्टेंस, उनको मटेरियल एग्जिस्टेंस को स्टॉप करना है और किंगडम ऑफ गॉड में जाना है। डिवोटी के लिए क्या है, भगवान की सेवा करनी है, चाहे कहीं पे भी रखे भगवान। ऐसा नहीं है कि गोल की जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर ही निकलना है हमें, हमको ऑटोमेटिकली भगवान निकालेंगे, लेकिन वो हमारा फोकस नहीं है। हमारा फोकस क्या है कि भगवान की सेवा में लगना। अगर भगवान कहते हैं कि नहीं आप एक और जन्म लो, तो हम कहेंगे नो प्रॉब्लम। अगर हमारे को भगवान की सेवा मिले तो वो अच्छा है, लेकिन अगर भगवान कहते हैं कि नहीं नहीं वापस आओ आप, तो वो भी हमारे लिए परफेक्ट है। तो ये होता है भक्ति योगी। अष्टांग योगी जो है वो कहता है नहीं नहीं मुझे तो निकलना है इस जगह से। फिर रेगुलेशन इन लाइफस्टाइल, रेगुलेटेड होती है दोनों की, ईटिंग स्लीपिंग ये सब चीजें रेगुलेटेड। कैसे, अष्टांग योगी जो है वो तो सिर्फ मोड ऑफ गुडनेस में जो चीजें वो खा लेते हैं, कि जैसे फ्रूट्स ले लिया, जंगल में है वो ले लिया, और कोई नॉन वेजिटेरियन तो क्वेश्चन ही नहीं है। लेकिन भक्ति योगा जो है उनके लिए ये है कि आप फ्रूट्स भी ले सकते हो और प्रसादम भी ले सकते हो, भगवान को कुक करने के उससे बना है कि इस तरह से कुक करा है कि भगवान की सेवा में लगेगा, तो वो चीजें आप ले सकते हो। और स्लीपिंग जो है वो बड़ी लिमिटेड रखते हैं लोग, दोनों योगी अपनी जितनी जरूरी है। और लाइफस्टाइल जो है वर्क और रिक्रिएशन वो भी बैलेंस्ड में रहता है और कृष्णा सेंटर्ड रहता है। तो ये थे दोनों के बीच में डिफरेंसेस, ठीक है ना। तो आई थिंक यहाँ पे एग्जांपल दिया षड गोस्वामीज का, जो लॉर्ड चैतन्य के डिसाइपल्स थे। उन्होंने अपने पर्सनल लाइफ से दिखाया कि कैसे बैलेंस करके भगवान को सेंटर बना के हम रह सकते हैं और बाकी अपनी बॉडीली नीड्स को मिनिमाइज कर सकते हैं। जितनी जरूरत है उतना तक रख सकते हैं, अननेसेसरली उसको एक्सपैंड नहीं करने की जरूरत है। उसी तरीके से हम भी अपनी फैमिली में रह सकते हैं, अपने घर परिवार सब लोगों को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, जैसे प्रभुपाद ने सिखाया है कि देखो ये सब लेडीज भी जो है वो बुक्स पढ़नी है और डिस्ट्रीब्यूट करने जा रही हैं, भगवान के बारे में बता रही हैं जगह जगह घर घर में, और सब उनके हस्बैंड भी जो हैं वो प्रभुपाद के साथ प्रीचिंग में जा रहे हैं। और ऐसे जैसे ये टॉर्टोइज है, टॉर्टोइज ने रखा हुआ है भगवत गीता अपने ऊपर, और जब सेंसेस आते हैं तो वो टॉर्टोइज अपने लिम्स को अंदर ले लेता है। जब अनफेवरेबल सिचुएशन आती है, जब फेवरेबल आती है तो बाहर निकाल के लेके जाता है और घर घर भगवत गीता को स्प्रेड कर रहा है। तो ये मकसद है, ऑलवेज एंगेज इन डिवोशनल सर्विस विद डिटर्मिनेशन। ओके, तो हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट? तो थैंक्स टू राधे श्याम प्रभु, उन्होंने अपनी जो है ये पावर पॉइंट एक्सेसिबल कर दी है, जिससे हम लोग भी इसको एक्सेस करके शेयर कर पा रहे हैं। ओके, मुझे ढूंढने से नहीं मिल रही है, मैंने कल इसे ढूंढा था। हाँ ये बड़ी स्पेशल तरीके से मिलेगी, मैं आपको सेंड कर दूंगा। थैंक यू। थैंक यू। ओके, एनी क्वेश्चंस, एनी कमेंट्स, एनी पॉइंट्स? किसी को कुछ समझ में तो नहीं आ गया? प्रभु जी एक्चुअली इतनी बार हमने 6 चैप्टर रिवाइज करे ना कि कोई इससे और डर लगने लग गया। नॉर्मल नहीं, हम जो चैप्टर्स खुद पढ़ते थे ना, अभी ऐसे घबराहट हो रही है कि इतनी बार पढ़ लिया कि क्वेश्चन पक्का गलत ही होने। आप लोग पढ़ते रहो, ये थोड़ी चीजें ऐसी हैं जो इम्पोर्टेंट है, और हम नेक्स्ट वीक जब करेंगे कहूत क्विज, तो फिर आप लोगों को ये सब चीजें जो है काफी तब तक सॉलिड हो जाएंगी। तो हमने 18 कर ली है, 18 तक अब आने वाले दिनों में और कर लेंगे। कल थोड़ा मुश्किल है, कल हम नहीं करेंगे कॉन्फ्रेंस कॉल, कल और परसों। मेरी एक दूसरी कॉन्फ्रेंस कॉल है एक्चुअली 6 चैप्टर में से ही। भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।